हेलो प्यारे बच्चों, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th video series. The first topic that I am going to cover it, Heron's formula. So under this particular topic, there will be several questions which I will cover in my videos of NCERT also and from some other famous books also. So do follow all the videos in this series. So this is the first video, that's why I am writing it here, part 1. So basically the Heron's formula is used to find out the area of triangle. Now with the help of the Heron's formula you can find out the area of any of the triangle. The most important thing here I want to tell you, we are going to revise all the previous knowledge till 6th, 7th, 8th you have studied, and then we will find out how this particular formula is helpful here. तो सबसे पहले we need to understand what is the concept of area. Area is always a product of two perpendicular dimensions, right? Now when I talk about the dimension, that means length in a particular direction. जैसे कि हम horizontal जाते हैं तो horizontal या left to right या east to west आप कहते हो. तो one dimension is this, another dimension is vertical dimension, that is up to down या north to south. So the meeting point is this. Here if they are making 90 degree, that means I can say that this is this side and this vertical line and this horizontal line are perpendicular to each other. So when you multiply these two, you will find out the area of a plane enclosed between these two sides, right? So अब by nature we are having the first quadrilateral, that is rectangle. So in the rectangle length and breadth are perpendicular. So what the area we have studied till now, length multiplied breadth. तो वही हो रहा है आपका product of two perpendicular sides. Now come to the area of square. In the case of square, the two sides are equal as well as the adjacent sides are perpendicular. तो साइड मल्टीप्लाइड साइड, लेंथ भी साइड है और ब्रेड्थ भी साइड है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर. इसके अलावा आपके जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, वेदर इट इज़ पैरेललोग्राम और रोम्बस और स्क्वायर काइट और ट्रेपेजियम, सो इन सब के केस में आप जो फॉर्मूला यूज़ करते हो, दैट इज़ एरिया of any other quadrilateral is base into corresponding altitude. मतलब सपोज मैंने ये आपका एक पैरेललोग्राम ले लिया, राइट? यहाँ पर मेरे पास ये बेस है, ठीक है, दिस आई एम टेकिंग एज द बेस. सो ऑन दिस बेस द परपेंडिकुलर विल बी ड्रॉन ईदर फ्रॉम दिस और फ्रॉम दिस, ठीक है. सो वन परपेंडिकुलर विल बी आउटसाइड और वन परपेंडिकुलर विल बी इनसाइड. तो इसमें से सिर्फ हमें एक ही परपेंडिकुलर लेना है, दोनों की हाइट सेम ही होगी. सो बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट और कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. सो बेसिक आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड्स, राइट. अब इसके बाद हम ये जब हमें बेस और हाइट गिवन है तब ये केस है. अब दूसरा केस ये हो सकता है कि सपोज वी आर हैविंग द diagonals, like I talk about the square and rhombus. इनके diagonals given है, तो इनके diagonals क्या होते हैं, they bisect each other at right angle. आप square की बात करते हैं या rhombus की बात करते हैं, तो rhombus के केस में भी क्या होता है, suppose this is your rhombus. So in the case of rhombus, what will happen, the diagonals, this is first diagonal and this is the second diagonal. तो ये दोनों ही आपके बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स पे कट करते हैं और दोनों ही कट करते हैं एट द राइट एंगल, राइट. तो यहाँ पर आपके पास क्या बनता है, हाफ इंटू डायगनल 1 मल्टीप्लाइड डायगनल 2, मतलब ये वाला डायगनल मल्टीप्लाइड दिस वन डायगनल. सो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रोम्बस. नाउ इन द केस ऑफ स्क्वायर बोथ द डायगनल्स आर इक्वल, तो हाफ इंटू डायगनल स्क्वायर्स. ओके. Now we move to the next particular quadrilateral. Suppose in any other quadrilateral other than square and rhombus, one diagonal is given and
its offsets are given. So how you are going to find out its area? हाफ इंटू डायगनल इंटू सम ऑफ ऑफसेट्स. अब ऑफसेट्स क्या होते हैं? जैसे सपोज ये आपका एक पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है, ओके, तो इसका जो डायगनल है दैट इज पी आर. अब इस पी आर पर एस से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया और एक क्यू से मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों क्या हो गए आपके ऑफसेट्स. ओके, सो दिस इज योर these are called as offsets. So half into diagonals into sum of offsets. So in this way you are going to get the area of the quadrilateral whose one diagonal and offsets are given. अब हमारे पास आ जाता है ट्रेपेजियम. तो ट्रेपेजियम में क्या हो रहा है? हाफ इंटू, ट्रेपेजियम आपका इस तरीके से होता है in which the two sides are parallel, two opposite sides are parallel, right? These two sides are parallel and this is the height. So sum of these two sides into height upon 2. This is the area of trapezium. कितने सारे फॉर्मूले हैं, है ना? बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं. अभी तो ट्रायंगल की भी बारी आती है. अभी हम ट्रायंगल में देखते हैं ट्रायंगल में क्या हो रहा है. अब इफ आई टॉक अबाउट द ट्रायंगल, सो ट्रायंगल से इफ आई टेक एनी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो एनी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल में आपके पास एरिया क्या निकल कर आ रहा है? बेस इंटू हाइट. मैंने एक डायगोनल ऐड कर दिया इसमें, मतलब ये आपका हाफ हो गया एरिया एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग ट्रायंगल. तो इसका क्या हो रहा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो एज ट्रायंगल इज हाफ ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, सो इट्स एरिया विल ऑल्सो बी हाफ. सो एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि डिफरेंट ट्रायंगल्स में डिफरेंट हो जाता है. लाइक आई टॉक अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल एट फर्स्ट. तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाता है आपका? ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों मिलकर राइट एंगल बनाते हैं. तो इधर यू टेक दिस एज अ बेस और हाइट और यू टेक दिस एज अ बेस और हाइट. तो आपके पास क्या निकल कर आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. मतलब आप जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर में बेस इंटू हाइट करते हैं, सिमिलरली राइट एंगल ट्रायंगल में भी आपको सेम केस ही मिल रहा है, बिकॉज दीज बेस और हाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, अब आती है बारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल द साइड्स आर इक्वल. नाउ दिस इज एरिया इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर. इसकी प्रॉपर डेरिवेशन होती है, उस डेरिवेशन के बाद ही आप ये एरिया निकाल पाते हो, है ना. तो ये डेरिवेशन जो है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी जहाँ पर मैं जितने भी आपको मैंने क्वाड्रिलेटरल्स और ट्रायंगल्स बताए हैं इन सब का फॉर्मूला आपको डराइव करके समझा दूंगी कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल और एनी ऑफ द ट्रायंगल. सो राइट नाउ फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल यू कैन लर्न दिस दैट √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. मतलब टिल क्लास 8th तक आप यही फॉर्मूले जो है वो याद करते हो. फिर इसके बाद आ जाता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल. इन द आइसोसेलेस ट्रायंगल दीज टू साइड्स आर इक्वल. लेट्स से कि दिस इज एक्स एंड दिस इज अनइक्वल साइड. ठीक है, लेट्स से इट इज ए. तो हाफ इंटू ए इंटू एक्स √x² माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4. ये फॉर्मूला भी डेरिवेशन के बाद आ जाता है. तो इसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि हाउ दिस फॉर्मूला इज कमिंग. टिल नाउ यू लर्न दिस फॉर्मूला. ये आप याद कर लीजिएगा. यू कैन डू वन थिंग, इधर यू टेक आउट द प्रिंट आउट एंड पेस्ट इट ऑन द वॉल, या फिर आप इसके नोट्स बना लीजिए. इन सारे फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए. बड़ा मुश्किल काम है बिकॉज यू हैव टू स्टडी सो मैनी सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो शायद आपकी इसी मुश्किल को आसान करने के लिए हेरोन्स ने एक फॉर्मूला निकाला था and that formula was completely based on the sides of any triangle. ठीक है, तो Herons have given a formula to find area of triangle using its side. जो Herons का formula होता है that gives the relationship between the perimeter and the area. कि with the help of the perimeter how you can find out the area. This information is given by the Herons formula. Or if you apply some basics and necessary concept, then this particular formula can be used to find out.
द एरिया ऑफ एनी पॉलीगन, मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ एनी पॉलीगन, तो आप इस चीज़ को समझिए वाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज द ट्रायंगल इज द फर्स्ट पॉलीगन एंड एवरी अदर पॉलीगन कैन बी चेंज्ड इनटू ट्रायंगल। ठीक है, तो यदि मुझे बेस पता है तो आई कैन अप्लाई इट अप टू एक्सटेंसिव लेवल। तो मुझे यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल अच्छे से आता है बाय यूजिंग द हेरोन्स फॉर्मूला, तो आई कैन अप्लाई इट टू एनी ऑफ द पॉलीगन। वो कैसे अप्लाई करना है दैट वी आर गोइंग टू सी इन डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला समझते हैं कि हाउ द फॉर्मूला इज एंड हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो सबसे पहले ये देखिए कि दिस इज एनी ट्रायंगल से पी क्यू आर, इसमें आपके पास 3 साइड्स है ए बी एंड सी। ठीक है, दिस ए इज इंडिकेटिंग द लेंथ ऑफ ट्रायंगल, लेंथ ऑफ साइड पी क्यू, राइट। देन पी आर is indicating B, QR is indicating the QR, तो C is indicating the length of QR। तो PQ की लेंथ A, PR की लेंथ B और QR की लेंथ C है। ठीक है, सबसे पहले हम इनका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो पेरीमीटर क्या हो जाता है आपको, यहाँ पर जो पेरीमीटर है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई 2S। इसके लिए एक स्टैंडर्ड सिंबल यूज होता है, that is 2S. Okay, this is the standard symbol for हेरोन्स फार्मूला। S जो है वो आपका स्टैंडर्ड सिंबल है फॉर हेरोन्स फार्मूला, राइट। तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए। अब पेरीमीटर में आप कैसे करोगे, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 2 ऑफ S, ये आपने सबसे पहले निकाल लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट द हाफ पेरीमीटर मीन्स सेमी पेरीमीटर। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पर जो आपका S है इसको हम क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर, राइट। सेमी मीन्स हाफ पेरीमीटर, राइट। तो ये आपका सेमी पेरीमीटर कहलाता है, दिस सिंबल S। अब हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, A, जस्ट पुट दिस S, जस्ट ओपन अप द स्क्वायर रूट। ठीक है, आपने ये स्क्वायर रूट ओपन अप किया, यहाँ पे सबसे पहले आपने S लिखा, सेमी पेरीमीटर, देन मेक 3 ब्रैकेट्स। If you have made 3 brackets, that means these 3 brackets are multiplied with each other. अब here you are writing S minus A in the first bracket, मतलब जो आपका सेमी पेरीमीटर है उसमें से आप लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेकेंड में लेंथ ऑफ सेकेंड साइड एंड देन इन द थर्ड लेंथ ऑफ द थर्ड साइड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इनका जो भी आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करिए और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। यू विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ पर्टिकुलर ट्रायंगल। सो दिस वाज द फॉर्मूला which is known as the Heron's formula and it is going to be very useful। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करेंगे मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एक क्वेश्चन से बता देती हूँ। And in the part 2, I am going to cover many questions, around 5 to 6 questions I am going to cover, which will help you to understand this concept more nicely. So here the question says, find the area of triangle. Okay, ये एक triangle है, 2 sides of which are given 8 centimeter and 11 centimeter. So the very first thing, make one habit to write down what is given to you. Given to you is A is 8 centimeter and B is 11 centimeter. What it is? Sides of triangle. आप यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो। देन पेरीमीटर, पेरीमीटर के लिए मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड सिंबल है 2S, दैट इज 2S 32। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, आपको थर्ड साइड नहीं पता है तो सबसे पहले आपको थर्ड साइड C पता करनी है। थर्ड साइड
C you have to find out. तो उसके लिए क्या करोगे आप, 32 माइनस a प्लस b करोगे, राइट. तो 32 माइनस 8 प्लस 11 दैट इज 19. तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 माइनस 9 3, 2 माइनस 1 1. तो ये आ गया आपका 13 सेंटीमीटर. तो सी भी आपने कैलकुलेट कर ली. हम एक काम करते हैं, वी आर राइटिंग इट एट वन प्लेस. 8 सेंटीमीटर, बी 11 सेंटीमीटर एंड सी 13 सेंटीमीटर. ओके. नाउ 2s इज 32. तो यहाँ पर s जो है वो कितना हो जाएगा, 16. एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो आपका s है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द गिवन साइड्स. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला एरिया. सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए. हमेशा मेक वन हैबिट टू राइट डाउन द फॉर्मूला. व्हेन यू राइट फॉर्मूला इन एवरी ऑफ द क्वेश्चन यू विल लर्न इट एंड ऑल्सो यू विल लर्न हाउ टू अप्लाई as well as it help you to understand the substitution method in algebra. तो सबसे पहले s की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे. कितना है ये आपका, 16. now 16 minus 8 in the second bracket, 16 minus 11 in the third bracket, 16 minus 13. आ गया आपका. अब इसके बाद स्क्वायर रूट 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3. ओके. अब वी कैन ओपन इट into the simplest form. तो prime like in the factor form we can open it. So we can see here that 1 2 5 and 3 are unpaired while these two are paired. Just paired data take it out of the square root and unpaired leave it inside the root. तो 5 3 are 15 plus 2 30. तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. So what is the area? Area is 8 root 30 centimeter square. I hope this formula and its basic application is clear to all of you. अब हम next videos में देखेंगे कि how this particular formula can be applied in different applications, है ना. So this particular formula is very useful. Practice it and it is very easy, quite helpful to score good marks. So keep practicing. Good luck. Don't forget to put like, share and subscribe button. And do comment also so that I can understand where do you need more help. What should be the topics on which I should make more content. So till then, stay connected. Good luck.